Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will explain Flamingo's second poem. And name of second poem is An Elementary School Classroom in a Slum, written by the poet Stephen Harold Spender. Students, in the title of the poem, Elementary means primary, and slum means dirty settlements. It means in this poem the poet is describing slum children. And now I will tell you about the poem. Stephen Harold Spender, who was born in 1909 and died in 1995. He was a great poet, novelist, and essayist. Students, this poem is a part of a book, and name of that book is The God That Failed, which was published in 1949. And this poem is a social satire, and it's a lyrical poem. In this poem, the writer describes the importance of education for slum children. In this poem, he describes two major themes. First is social injustice. Injustice means unfair, and second theme is class inequalities. Now we will read poem. First stanza is far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her waved down head, the paper singing boy with rat's eyes, the stunted, unlucky air of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of scarce game in free room other than this. स्टूडेंट्स यहाँ पे पोइट क्या बता रहा है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. फर्स्टली आई विल टेल यू डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस स्टेंजा. गस्टी मीन्स blowing strongly. Rootless means uprooted. Weeds means unwanted plants. Torn round means scattered, बिखरे होना. Pallor means pale faces. Weighed down means bent down, झुका होना. The stunted means undeveloped. Unlucky means unfortunate. Heir means successor, उत्तराधिकारी. Of twisted bones. Twisted means bent, मुड़ी होना. Reciting means describing. Gnarled means knotty, गांठदार. Dim means not clear, faint, धुंधला होना. Unnoted means unnoticed, जिसको नोटिस ना किया गया हो. अब इसको हम लाइन बाय लाइन देखते हैं. Far far from gusty waves, these children's faces. In this poem, these children refers children who live in slum. मीन्स slum children है, उनको यहाँ पे these children बोला गया है. एंड फार यहाँ पे पोइट है फार वर्ड का दो बार यूज करता है. क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू शो अ लार्ज डिस्टेंस. अब पोइट क्या कह रहा है कि द फेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रन आर वेरी फार अवे फ्रॉम द एनर्जी एज दे शुड बी. कि इन बच्चों के फेसेस हैं वो उस एनर्जी से बहुत ही दूर है जो कि उनके अंदर होनी चाहिए. लाइक रूटलेस uprooted, weeds unwanted plants. These children are like uprooted weeds. जैसे कि weeds से किसी का अटैचमेंट नहीं होता है तो वैसे ही इन बच्चों से अटैचमेंट नहीं है, ये सोसाइटी के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं. तो इनका कंपेरिजन किससे किया है? रूटलेस वीड से किया है. द हेयर टोन राउंड देयर पैलर. और उनके जो हेयर बाल हैं वो कैसे हैं? देयर हेयर आर स्कैटर्ड डिसऑर्डरली ऑन देयर पेल फेसेस. पेल फेसेस किसके हैं? उन बच्चों के हैं. उनके फेसेस पेल क्यों है? बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रिशन. अब उनके बाल, उनकी कंडीशन क्या है? वो अनकोम्ड है. वो उनके फेस पे डिसऑर्डरली स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं. उनके फेसेस कैसे हैं? पेल हैं. The tall girl with her weighed down head.
अब यहाँ पे पोइट क्या कर रहा है, ही इज डिस्क्राइबिंग सम स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन दैट क्लासरूम। जो क्योंकि इस पोएम में एक क्लासरूम को डिस्क्राइब किया गया है, वो क्लासरूम है वो उस स्कूल का क्लासरूम है जो स्लम एरिया में बना हुआ है। अब पोइट कहता है द टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, कि यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्राइब किसको किया, एक गर्ल को किया, हु इज टोलर देन अदर्स। हियर टोल वर्ड वर्क्स लाइक एडजेक्टिव, यहाँ पे टोल है वो एडजेक्टिव का काम करता है क्योंकि ये गर्ल को डिफाइन करता है। इसने गर्ल को डिफाइन क्या किया, दैट शी इज टोलर देन अदर स्टूडेंट्स। द पेपर स्विमिंग बॉय, नाउ ही इज डिस्क्राइबिंग ए बॉय who looks like a paper, as a paper is weak and thin, in the same way the boy is physically weak and thin। मीन्स दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही वीक वाइटिस हैं और वो थिन है। अब बॉय है पेपर स्विमिंग बॉय, वो पेपर जैसा दिखता है, क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रिशन। विद रैट्स आइज, और उस बॉयज की आइज कैसी हैं, लाइक ए रैट। अब रैट की आइज कैसी होती हैं कि एज रैट्स आइज आर ग्रीडी फुल ऑफ हंगर, इन द सेम वे द आइज ऑफ दिस बॉयज आर ग्रीडी एंड फुल ऑफ हंगर। अब इनकी आइज फुल ऑफ हंगर क्यों है, क्योंकि इनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, इसलिए इनकी आंखों में हमेशा भूख रहती है, लालच रहता है, इसीलिए इनका कंपैरिजन किससे कर दिया गया है, रैट से कर दिया। The stunted, stunted means undeveloped, unlucky heir, unlucky means unfortunate heir, heir means successor। और ये बॉय है, ये क्या है, ये अपने फादर का अनलकी और अनडेवलप्ड सक्सेसर है। क्यों, क्योंकि ही हैज़ डिफॉर्म्ड बॉडी, उसकी बॉडी कैसी है, डिफॉर्म्ड है। डिफॉर्म्ड बॉडी क्या है, जिसमें कमी हो। अब उस बॉय की बॉडी है वो डिफॉर्म्ड बॉडी कैसे है, बिकॉज हिज बोन्स आर बेंट, उसकी जो बोन्स है वो मुड़ी हुई है, इसलिए उसकी बॉडी कैसी है, डिफॉर्म्ड है। द स्टंटेड अनलकी हेयर एंड दैट बॉय इज undeveloped and he is unfortunate successor of his father। Why he is unfortunate, because he has deformed body, so he is unfortunate and undeveloped successor of his father। of twisted bone, here is a question, how he has deformed body, so how, because he had twisted bones, his bones are bent, so he had deformed body। reciting a father's gnarl disease, और वो कर क्या रहा है, ही इज डिस्क्राइबिंग हिज फादर्स डिजीज वन बाय वन। वो अपने फादर की जो डिजीज हैं, जो नोटी डिजीज हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पे बैठा बैठा ही उन डिजीज के बारे में, अपने लेसन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। अब वो डेस्क पे बैठा बैठा क्यों कर रहा है, because he is not able to stand properly, he has deformed body, that's why he is reciting his lesson in sitting position, he was sitting on his bench at back of the dim classroom। now the poet is describing one another boy, और boy क्या है कि one unnoted, unnoted means unnoticed, जिसको नोटिस ना किया गया हो, sweet and young। अब यहाँ पे क्लासरूम को भी डिस्क्राइब कर रखा है और उस बॉय को भी कर रखा है। क्लासरूम को तो क्या कर रखा है, द क्लासरूम वॉज डिम। वाई द क्लासरूम वॉज डिम, बिकॉज देयर वॉज नॉट एनी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट, सो द क्लासरूम वॉज डिम। उस डिम क्लासरूम में क्या हो रहा है, ए बॉय हु लुक स्वीट एंड यंग, ही वॉज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। जो स्वीट और यंग है वो क्लास के पीछे लास्ट बेंच पे वो बैठा हुआ है। दैट्स वाई ही इज अननोटिस्ड, इसीलिए वो कैसा है, अननोटिस्ड है। अननोटिस्ड कौन है, वो लड़का जो लास्ट में बैठा हुआ है वो अननोटिस्ड है। वो अननोटिस्ड क्यों है, बिकॉज ही वॉज सिटिंग एट द लास्ट ऑफ द क्लासरूम एंड द क्लासरूम वॉज डिम, दैट्स वाई ही वॉज अननोटिस्ड। स्वीट एंड यंग, हाउ ही लुक्स, वो दिखता कैसा है, ही लुक्स स्वीट एंड यंग। His eyes live in a dream, उसकी आईज को डिस्क्राइब कर रखा है, उसकी आईज कैसी हैं, he has dreamy eyes, there are many dreams in his eyes,
उसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं, उसके ब्राइट फ्यूचर के, अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचता है। उसका फ्यूचर वो ब्राइट है नहीं, लेकिन वो सोच रहा है, वो किसी और कुछ गेम है उनके बारे में सोच रहा है, वो बहुत सी चीज़ों के बारे में ड्रीम ले रहा है। He has dreamy eyes. Who has dreamy eyes? The boy who is unnoticed and who is sitting at the back of the classroom and who looks sweet and young. He has dreamy eyes. Of scarce game. अब उसके ड्रीम्स कौन से हैं? He is dreaming about scarce game. वो जो स्केल मीन्स गिलहरी, वो स्केयर गेम का ड्रीम ले रहा है। अब गिलहरी देखी होगी सभी ने। अब वो खेलती है तो कैसे कि मान लो कोई ट्री है तो गिलहरी क्या करेगी, ट्री के ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, इस तरीके से वो खेलती रहती है। तो वैसे ही वो बॉय है, वो भी स्केल की तरह ड्रीम ले रहा है, वो उसकी तरह खेलना चाहता है, वो फ्रीडम चाहता है। इन ट्री रूम, हियर ट्री रूम मीन्स प्लेस मेड इन द ट्री, जो प्लेस बना हुआ है ट्री के अंदर उसको यहाँ पे ट्री रूम बोला है। जिसमें जिसकी हेल्प से वो स्केल खेल रही है उसको यहाँ पे ट्री रूम बोला है। अदर देन दिस, इट मीन्स द बॉय इज ड्रीमिंग मैनी थिंग्स, ही इज ड्रीमिंग अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस डल क्लासरूम। हेयर दिस रेफर्स दिस डल क्लासरूम। अब क्लासरूम को डल क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, लाइट का अरेंजमेंट भी नहीं है, कोई प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है, इसलिए क्लासरूम कैसा है? डल है। अब यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस आई है वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ एक बार। फर्स्ट लाइन है फार फार, फार फार में डिवाइस है रिपीटेशन, बिकॉज द पोइट यूज फार वर्ड 2 times टू शो अ लार्ज डिस्टेंस, सो हियर इज डिवाइस रिपीटेशन। नेक्स्ट इज लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक रूटलेस वीड्स में डिवाइस है सिमली, बिकॉज कंपेरिजन इज गिवन, कंपेरिजन बिटवीन rootless weeds and slum children. As rootless weeds are without any attachment, they are ignored by a farmer. In the same way, these children are ignored by society. So here device is simile because like word is given here. Next is tall. Tall word is adjective. Paper swimming boy. Here a comparison between a paper and that boy who is very weak. So device is metaphor. नेक्स्ट इज विद रैट्स आईज, अगेन कंपैरिजन, कंपैरिजन किसका? उस बॉय का कंपैरिजन किससे है? रैट्स आईज से है। एज रैट्स आईज आर फुल ऑफ हंगर एंड ग्रीडी, इन द सेम वे हिज आईज आर फुल ऑफ हंगर एंड ग्रीडी, बिकॉज दोनों में कंपैरिजन है, दैट्स वाई मेटाफर डिवाइस इज यूज्ड हियर। नेक्स्ट डिवाइस इज इन ट्री रूम, ट्री रूम में डिवाइस कौन सी है? मेटाफर डिवाइस है। एंड नेक्स्ट है कि जो बॉय है वो तो उसके ड्रीम तो कैसे हैं? ब्राइट फ्यूचर के हैं। वो बैठा कहाँ पे है? डिम क्लासरूम में। तो यहाँ पे डिवाइस हमारी बनेगी एंटीथेसिस। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकंड स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा ऑन शोर क्रीम बोर्ड्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड cloudless at dawn, civilized dome riding old cities, belled flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where on their future painted with a fog, a narrow street, सॉरी यहीं तक है बुक में, ओके यहाँ पे है कि ऑन शोर क्रीम बोल्स। अब यहाँ पे शोर, शोर का मतलब है अनप्लीजेंट, जो अच्छा नहीं है। बोल्स मीन्स बोल्स ऑफ द क्लासरूम। डोनेशंस, डोनेशंस मीन्स थिंग्स गिवन एज गिफ्ट। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर्स हेड यू नो वेरी वेल अबाउट विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया हुआ है कि उसका जो हेड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसका हेड है वो रिप्रेजेंट करेगा एजुकेशन, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड राइजिंग सन। डान, हेयर डान मीन्स अर्ली मॉर्निंग बिफोर द सनराइज, मीन्स जो सुबह का टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का वो टाइम है यहाँ पे डान। सिविलाइज डोम, सिविलाइज डोम मीन्स
institutions of the civilized world. Belt. Belt means having bells. Tyrolese Valley. Tyrolese Valley means valley in Tyrol in Australia. जो ऑस्ट्रेलिया में वैली है जिसका नाम टायरोली है उसको यहाँ पे टायरोलिस वैलीज बोला गया है और टायरोली प्लेस का नाम भी है. ओपन हैंडेड मैप. ओपन हैंडेड मैप मीन्स a map drawn by rich person and dictators according to their own will. जो रिच पीपल हैं उनकी मर्जी से ड्रॉ किया गया मैप वो क्या है? ओपन हैंडेड मैप. अवॉर्डिंग. अवॉर्डिंग मीन्स गिविंग द अवॉर्ड. इट्स वर्ल्ड. इट्स वर्ल्ड मीन्स द वर्ल्ड एज पार्टीशन्ड बाय द कंक्वेरर्स. And next is these children. These children means slum children. Sealed in. Sealed in means closed in. अब यहाँ पे है on shore cream walls. Now the poet is describing the walls of the classroom. कि जिस क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं उनकी walls कैसी हैं? उनकी walls कैसी हैं? The walls of the classroom are not fresh painted. वो स्मेली हैं, वो फोगी हैं, उनके अंदर से स्मेल आ रही है वो क्योंकि उनको फ्रेश पेंट नहीं किया गया है. उनका कलर कैसा है? शोर क्रीम ऑफ वाइट उनका कलर है. डोनेशंस. अब वहाँ पे जो लोग विजिट करने आते हैं वो डोनेशन दे के जाते हैं और उस डोनेशन से कुछ पोस्टर परचेज किए गए हैं और वो पोस्टर उस क्लासरूम में टांगे गए हैं. तो फर्स्ट पोस्टर कौन सा है? शेक्सपियर्स हेड. कि जो क्लासरूम है स्लम एरिया का वहाँ पे विलियम शेक्सपियर का पोस्टर लगा हुआ है. अब विलियम शेक्सपियर्स हेड रेफर्स राइजिंग सन, एनर्जी, सिविलाइजेशन एंड एजुकेशन. लेकिन उन बच्चों के लिए पोस्टर क्या है कि उनके अकॉर्डिंग तो पर्सन कौन है? कोई बाल्ड हेडेड पर्सन है क्योंकि विलियम शेक्सपियर कैसे हैं? बाल्ड हेडेड गंजे हैं वो. तो उन बच्चों के अकॉर्डिंग तो वो एक बाल्ड हेडेड पर्सन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं. तो यहाँ पे है कि लेकिन ये पोस्टर है वो उन बच्चों के लिए यूजफुल होगा? नहीं होगा. क्यों? बिकॉज दे डोंट नो अबाउट विलियम शेक्सपियर एंड हिज अचीवमेंट्स. दे डोंट नो हु इज विलियम शेक्सपियर. उनको पता ही नहीं कि कौन विलियम शेक्सपियर है, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, उनके वर्क्स क्या हैं, उनका एजुकेशन में क्या रोल है, उन्हें कुछ नहीं पता. तो इस ये पोस्टर उनके लिए कैसा है? यूजलेस है. क्लाउडलेस एट डॉन. अभी यहाँ पे ये पोस्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्ली मॉर्निंग सीन को. जो अर्ली मॉर्निंग सीन जो डिस्क्राइब किया गया है वो कैसा है? क्लाउडलेस है. इट मीन्स द वेदर वॉज वेरी क्लियर, वेरी प्लीजेंट. वहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं है. तो अर्ली मॉर्निंग सीन है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है इस पोस्टर के थ्रू. बट दिस पोस्टर इज अगेन यूजलेस फॉर दी चिल्ड्रन. वाई? Because they never enjoy such kind of morning. Their own morning is dusty because they live in dusty area. Civilized dome riding all cities. Civilized dome. Dome is high building riding all cities. This poster represents a developed city. एक developed city को represent करता है. Now again क्वेश्चन ये बनता है कि how can you say the city is developed? तो city developed क्यों है? Because there are many high building in that city. और city में high building है इसका मतलब city कैसी है? Developed है. Here the poet is describing a developed city and in that city there are many high building. But this poster is useless for the children. Why? Because they never visit such kind of city. The whole time they live in their dusty area, they live in their slum area. So this is again useless for them. नेक्स्ट है बेल्ड फ्लारी टायरोलिस वैली. अब यहाँ पे टायरोलिस वैली को डिस्क्राइब किया गया है. दिस पोस्टर रिप्रेजेंट्स नेचुरल ब्यूटी. नेचुरल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है कि वैली में क्या है? देयर आर मैनी फ्लावर्स एंड म्यूजिक इन दैट वैली. But this valley is again useless for them. This poster is useless for them because they never enjoy and visit such kind of place. Next is open-handed map. A map is also hung on that classroom wall. And map is open-handed map. Open-handed map means
a map drawn by rich person and dictators. जो रिच होते हैं उनके द्वारा और जो डिक्टेटर्स हैं, डिक्टेटर्स मीन्स कन्क्वेरर्स, विजेता, उनके द्वारा जो मैप ड्रॉ किया गया है वो कौन सा है? ओपन हैंडेड मैप। अब उन बच्चों के लिए वो मैप कोई काम का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस मैप में क्या कर रखा है? हाई बिल्डिंग शो कर रखी है और उनका एरिया है वो थोड़े से मैप में मेंशन कर रखा है। सो दिस पोस्टर इज यूजलेस फॉर देम। व्हाई? बिकॉज इन ओपन हैंडेड मैप देयर ओन एरिया इज नॉट प्रॉपरली मैंशनड। मैंशन तो है बट प्रॉपरली मैंशन नहीं है, तो ये पोस्टर उनके लिए क्या हो गया? यूजलेस हो गया। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब जो रिच पीपल है वो क्या करते हैं? वो अपने वर्ल्ड को, रिच वर्ल्ड को पुअर के ऊपर क्या करते हैं? इम्पोज कर देते हैं, वो थोप देते हैं। एंड यट, लेकिन इन बच्चों के लिए, फॉर दी चिल्ड्रन स्लम चिल्ड्रन, बट फॉर स्लम चिल्ड्रन दीज विंडोज मीन्स द प्लेस वेयर दे आर सिटिंग एंड देयर सराउंडिंग। जहाँ वो बैठे हुए हैं उनके आसपास का एरिया है, मीन्स कौन सा एरिया? स्लम एरिया। इन बच्चों के लिए खुद का एरिया कौन सा है? खुद का वर्ल्ड कौन सा है? उनका स्लम एरिया है, वो उनका खुद का वर्ल्ड है, ना कि वो मैप में डिस्क्राइब कर रखा है, वो उनका खुद का है। नोट दिस मैप, ये मैप उनका नहीं है। दिस मैप रेफर्स ओपन हैंडेड मैप। देयर वर्ल्ड, उनका जो वर्ल्ड है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फोग। जो ओपन हैंडेड मैप है उसमें क्या कर रखा है? उनका जो वर्ल्ड है वो फोग से पेंट कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि इन रिच पीपल्स वर्ल्ड स्लम चिल्ड्रंस फ्यूचर इज डार्क, अनसर्टेन, ब्लीक, क्योंकि उस वर्ल्ड में उनकी कोई भी प्रोग्रेस है ही नहीं, इसलिए उनका वर्ल्ड कैसा है? बहुत ही डार्क है। A narrow street sealed in with a lead sky। अब यहाँ पे है कि नैरो स्ट्रीट, कि उनका जो एरिया है वो कैसा है? बहुत ही लिमिटेड है, नैरो है, और उस एरिया ने क्या कर रखा है? उनको सील कर रखा है, उनको बंद कर रखा है। उनको बंद कर रखा है मतलब उनकी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रखा है इन ए लीड स्काई, इन डस्टी स्काई। क्योंकि ये बच्चे कहाँ पे रहते हैं? ये डस्टी स्काई के नीचे रहते हैं और उस एरिया ने उनकी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रखा है, बिल्कुल ही सील कर रखा है। सील्ड इन मीन्स क्लोज्ड इन। Far, far from rivers, caves and stars of words. Again, the poet used far word 2 times. Answer is same because he wants to show a large distance. From the rivers, caves. अब यहाँ पे है कि rivers means open area, caves, seaside, and stars of words means education. These children are very far away from the openness, from seaside and education। कि ये बच्चे हैं ये एजुकेशन से बहुत ही दूर हैं। अब यहाँ पे स्टार्स ऑफ वर्ड्स को एक्सप्लेन किया जाए तो कैसे होगा कि एज स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, in the same way real education is very far away from them। Next is, surely Shakespeare is wicked। The map a bad example, with sheep and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night। On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle beat on stone। Surely means definitely। Shakespeare is wicked। Wicked means not good। Definitely Shakespeare is not good for these children। Why? Because they don't know about their works and achievements। They don't know who is William Shakespeare। So for them William Shakespeare is bad।
द मैप ए बैड एग्जाम्पल, विच मैप? ओपन हैंडेड मैप, विच वॉज हंग ऑन द क्लासरूम, जो मैप वहाँ पे लगा हुआ है क्लासरूम में वो उनके लिए क्या है? बैड एग्जाम्पल है। बैड एग्जाम्पल क्यों है? बिकॉज इन दैट मैप देयर ओन एरिया, देयर ओन वर्ल्ड इज नॉट प्रॉपरली मैंशनड, सो दिस मैप इज ए बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन। With ships and sun and love, tempting them to steal. Here tempting means attracting them. Them refers slum children. अभी यहाँ पे क्या है कि जो रिच वर्ल्ड है वो ठीक है, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसके बाद भी रिच वर्ल्ड हैज़ मैनी अट्रैक्शंस लाइक शिप, सन एंड लव। जो रिच वर्ल्ड में है उसमें बहुत सारे अट्रैक्शन हैं, जैसे कि शिप है, लव है और सन है, और ये चीज़ें इन बच्चों को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। बिकॉज दीज थिंग्स आर आउट ऑफ देयर रीच, दे कांट गेट दैम, सो दे ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स दीज थिंग्स and they try to snatch them, they try to grab them and run away. In this way bad habits are developing in them. ये चीज़ें उनकी पहुंच से बाहर हैं, वो उनको पाने की कोशिश करते हैं, वो छीनने की कोशिश करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से बैड हैबिट्स उनमें डेवलप होती हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली मीन्स सीक्रेटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, कि ये बच्चे हैं क्या करते हैं? द वोल लाइफ दे स्पेंड देयर वोल लाइफ इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, देयर नैरो हाउसेज, कि वो अपनी पूरी लाइफ है वो अपने छोटे घरों में स्पेंड कर देते हैं। हेयर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड मीन्स नैरो छोटे, और होल्स मीन्स देयर हाउसेज। एक्चुअल में होल्स किसके होते हैं? रैट के होते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर रखा है किसका किससे? जो रैट के होल होते हैं, बिल होते हैं, उनका कंपैरिजन जो स्लम चिल्ड्रन के हाउसेज हैं उनसे कर रखा है, कि जैसे कि उनका बिल है, उनके होल्स हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं, तो वैसे ही उनके घर हैं वो कैसे हैं? स्मॉल हैं। वो केवल एक या दो बंदों के लिए सफिशिएंट होते हैं रहने के लिए, लेकिन उसके बाद भी इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्रैम्प्ड होल में मेटाफर डिवाइस का यूज हुआ है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, एक तो उनके हाउसेज है वो छोटे हैं, वो अपने डस्टी एरिया में रहते हैं, उसके बाद वहाँ भी वो आराम से नहीं है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम डे टू एंडलेस नाइट मीन्स फ्रॉम डे टू नाइट दे आर टॉर्चर्ड बाई हाई सोसाइटी। वो हर टाइम सुबह से शाम तक हाई सोसाइटी के द्वारा टॉर्चर होते रहते हैं। एंड देयर टॉर्चर इज एंडलेस, उनके टॉर्चर का कोई एंड नहीं है, उनका टॉर्चर लाइफ टाइम चलता रहता है। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मीन्स वेस्ट मटेरियल, हीप मीन्स पाइल्स, ढेर। दी चिल्ड्रन ऑलवेज वंडर ऑन द पाइल्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये बच्चे क्या करते हैं? जो वेस्ट मटेरियल है, गार्बेज है, उनके ऊपर घूमते रहते हैं, उनके ढेर पे घूमते रहते हैं। दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड मीन्स एमर्ज थ्रो बाई बोन्स। अभी यहाँ पे उनकी जो फिजिकल वीकनेस है वो दिखाई गई है, कि ये चिल्ड्रन है ये इतने वीक हैं कि उनकी जो बोन्स है वो उनकी स्किन में से बाहर निकल रही है, इतने वो फिजिकली वीक हैं, उनकी फिजिकल वीकनेस है वो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील मीन्स कि उनकी लाइफ है वो उतनी हार्ड है जितनी कि स्टील है, और जो उनके स्पेक्टेकल्स उन्होंने पहन रखे हैं वो किसके बने हुए हैं? स्टील के बने हुए हैं। यहाँ पे स्टील है वो इन्फीरियर, चीप, हैवी, इन सब को डिस्क्राइब करती है कि जो स्टील है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो इन्फीरियर, घटिया है, सस्ती है। तो उनके स्पेक्टेकल्स भी कैसे हैं? वो भी चीप हैं, गुड क्वालिटी के नहीं हैं, वो इन्फीरियर है, वो अच्छे हैवी हैं उनके लिए। तो ये सब यहाँ बताना चाहता है। विद मैंडेड ग्लास, एक तो उनके स्पेक्टेकल्स हैं वो फ्रेश नहीं है, न्यू नहीं है, ठीक है, वो स्टील के बने हुए हैं। सेकंड है कि वो भी फ्रेश नहीं है, देयर स्पेक्टेकल्स आर मैंडेड, उनके ग्लास हैं जो लेंसेज हैं वो मैंडेड हैं। मैंडेड मीन्स रिपेयर्ड, वो रिपेयर किए गए हैं। उनकी पॉवर्टी को दिखाया गया कि वो इतने पुअर हैं कि उनके जो स्पेक्टेकल्स हैं, उनके ग्लास हैं, लेंसेज हैं, वो भी रिपेयर्ड हैं। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन, यहाँ पे डिवाइस है सिमली, बिकॉज लाइक इज गिवन हेयर,
लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन। अब यहाँ पे जैसे कि कोई बोतल है, यदि हम उसको स्टोन पे मारते हैं तो वो क्या होती है, स्कैटर्ड, बिखर जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही जब इन बच्चों के ड्रीम्स हैं वो इस वर्ल्ड की हार्श रियलिटी को फेस करते हैं तो उनके ड्रीम्स भी टूट जाते हैं। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज ड्यूम। एज बिग एज में डिवाइस है सिमली बिकॉज ऑफ एज वर्ड ब्लोट। ब्लोट मीन्स ब्लेमिश, स्पॉट, धब्बा। और जो रिच वर्ल्ड है उसमें उनका वर्ल्ड है वो एक धब्बे की तरह है, और रिच वर्ल्ड के रिच पीपल हैं उनके लिए वो स्पॉट कैसा है, बहुत ही बड़ा है। इसका मतलब है कि जो मैप हमने डिस्क्राइब किया था अभी कुछ टाइम पहले, उस मैप में पूरे में तो हाई बिल्डिंग है और नीचे थोड़ा सा एरिया है वो स्लम एरिया शो कर रखा है, और वो स्लम एरिया ही उनके लिए एक धब्बे जैसा है, एक स्पॉट जैसा है, और उनको वही स्पॉट बहुत ही बड़ा दिखता है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh break open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books and white and green leaves, open history theirs whose language is the sun. In starting three stanzas, the poet describes the problems of these children, but in the last stanza, he describes the solution of that problem. कि पोइट चाहता क्या है, जो स्लम चिल्ड्रन है उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है, तो वो लास्ट में दे रखा है इसने, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर। In this stanza, the poet is requesting, the poet is urging to governor, inspector and visitors. मीन्स ये किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, गवर्नर को, इंस्पेक्टर को, विजिटर को। क्यों? बिकॉज दीज पीपल हैव पावर। इनके पास क्या है, पावर है, और इनकी कंडीशन को चेंज कौन कर सकता है, जिनके पास पावर है वही कर सकता है। सो ही इज रिक्वेस्टिंग टू दीज चिल्ड्रन, ही इज रिक्वेस्टिंग टू गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स। उसकी रिक्वेस्ट क्या है कि दिस मैप मीन्स ओपन हैंडेड मैप, कि ओपन हैंडेड मैप है, बिकम्स देयर विंडो। ओपन हैंडेड मैप है, उनका मैप हो सकता है, मीन्स उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है। एंड दीज विंडोज, और वो विंडोज कौन सी, स्लम एरिया, वो स्लम एरिया जहाँ पे वो प्रेजेंटली रहते हैं, उस एरिया ने क्या कर रखा है, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकम्स। कैटाकम्स मीन्स अंडरग्राउंड ग्रेव्स, मीन्स कब्र। लाइक कैटाकम्स में डिवाइस है सिमली, कि जैसे कि जो अंडरग्राउंड ग्रेव्स होती है, कब्र होती है, उसमें किसी की प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही इन बच्चों, जो ये बच्चे हैं तो स्लम एरिया में रहते हैं, तो स्लम एरिया में रहते हुए इनकी प्रोग्रेस भी पॉसिबल नहीं है। ये स्लम एरिया उनके लिए कैटाकम्स जैसा है। ब्रेक ओ ब्रेक, इट्स वेरी अर्जेंट। ब्रेक ओ ब्रेक में डिवाइस है रिपीटेशन एंड अलिट्रेशन। रिपीटेशन ओ ब्रेक वर्ड एंड अलिट्रेशन ओ। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। इसलिए क्या करना चाहिए, इन बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, और कहाँ पे ले जाना चाहिए, टाउन में ले जाना चाहिए, आउटसाइड दैट स्लम एरिया। एंड शो द चिल्ड्रन, और टाउन में लेके गए, वहाँ पे ले जाके क्या करें, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड शो देम ग्रीनरी, उनको ग्रीनरी दिखाई जाए जो कि उनके एरिया में है ही नहीं। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजूरे ऑन गोल्ड सैंड्स, उन्हें सी साइड लेके जाया जाए ताकि वो भी हैप्पीनेस फील कर सके, वो भी नेचुरल सीन्स को देख सके। एंड लेट देयर टंग्स, अब लेट देयर टंग्स का मतलब है कि उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए, उनकी टंग्स को फ्रीडम होनी चाहिए, किस चीज़ की, टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, टू एक्सप्रेस देयर स्टैंड्स, कि उनके पास बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें। रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनके लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर देम, इट्स मस्ट फॉर देम, ओनली एजुकेशन कैन इम्प्रूव देयर कंडीशन। द वाइट, green leaves means again greenery, open,
history theirs whose language is the sun. It means only those person can change history who has power like sun, who has confidence, and these people are governor, inspector and visitor, because these people have power. So the poet is requesting to these children. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी। बेटा इसको पढ़ के देखना है, फिर भी कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।